Assalamu alaikum students. I hope all of you are well. This lecture is for American literature, and because we have chosen Robert Frost to study first, उनकी एक point जो है वो हम कर चुके हैं, the road not taken, and the second point that I've chosen for you guys is birches. Uh, Birches is a kind of a tree, and in this poem, on the surface level, it looks like that the writer, the poet, is only talking about the tree and its branches, how they are bowed down, how they are bent downwards, and then he imagines as if a boy had been swinging on those branches. That is why, because of the weight of the boy, the branches have been bent. But then he learns the truth that there was snow, and because of the snow, they are laden and they are bowed down and bent because of the weight of the snow. And then he imagines, he remembers his time when he would swing on, the branches when he was a young boy, and he compares himself to what he is now. And there are a lot of meanings, underlying meanings, which can be seen in this poem, apart from the one that are on the surface level. Let's have a look. I have added the text of the poem in this document. I'll be sending this document to you guys along with this audio lecture that I'm recording right now. And then I've also given you an analysis. This will give you a pretty good idea about all of the basic themes and signs and motives in this poem. But I do encourage some research on your part. Do some research on yours, by yourself as well, and do try to figure out some things on your own as well. But this these notes would give you a better idea, a good idea about what this poem is all about. सो बेसिकली टाइटल जो था वो पोएम का, उसने स्विंगिंग बर्चेस रखना था, लेकिन बाद में ही जस्ट वेंट विद बर्चेस। और उसमें वो मैंने जैसे बताया है कि वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो ब्रांचेस हैं उस ट्री की वो नीचे हुई हुई हैं एंड ऑल दैट। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ही इज़ ऑल्सो रिमेम्बरिंग हिज पास्ट व्हेन ही वाज अ बॉय। मे बी ही इज़ मिसिंग हिज चाइल्डहुड, द लॉस ऑफ हिज यूथ। एंड जैसे कि वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में भी हम देखते हैं, कुछ वो टच भी आपको नज़र आता है। बेसिकली जो बर्चेस हैं, इट सिग्निफाइज एस्केप फ्रॉम रियलिटी। वो जो स्विंगिंग का मोशन होता है, जैसे ब्रांच ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, वो जो ऊपर जाने का मोशन है, एक्चुअली दैट इज़ ऑल अबाउट जो उसका ऊपर जाने का मोशन है वो एक्चुअली इमेजिनेशन की तरफ जाने की बात करता है। ठीक है, व्हेन यू लीव द वर्ल्ड, ठीक है, जब आप अपनी रियलिटी से, वो कहता है कि जो रियलिटी होती है, sometimes becomes so painful and so hard that you want to escape it for a while and you want to just go towards heaven. Towards heaven से उसकी मुराद ये है towards imagination. Imagination जो होती है वो इंसान की creative power होती है mind की, and that takes you away from reality, so that for a little while आपको escape चाहिए होता है. So he's talking about that, but then he also talks about the branches coming down. Upward motion के साथ वो downward motion जो नीचे ज़मीन तक आपको ला रहा है, उसकी भी बात करता है. He says that ये दोनों चीजें एक बैलेंस है। ठीक है, what he wants to say in this poem is that this upward motion and then the motion of coming back to earth, this is a balance between life and imagination, reality and imagination. ठीक है, जो आपका रियल जो सर्कमस्टांसेस हैं उनसे, ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए escape तो करो, लेकिन वापस आना जरूरी है. सो ही हैड अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच. ही डज नॉट से कि काश ऊपर ही रह जाए हम लोग, हेवंस में ही रह जाए, इमेजिनेशन में ही रह जाए. नो, he is not like that. He says that we need to come back, we need to be grounded in the रियलिटी एज वेल. ठीक है, जो पैर हैं वो ग्राउंड को छूने ज़रूरी हैं, बिकॉज अगर ये नहीं होगा तो ऑफ कोर्स आप जब बहुत ज़्यादा भी जो लोग इमेजिनेशन में रहते हैं वो फिर पागलपन, जिसको आप इंसानिटी कहते हैं, दे माइट गो टूवर्ड्स दैट. तो ह्यूमन के लिए, एक ह्यूमन नेचर के लिए ज़रूरी है दैट फॉर सम टाइम ही नीड्स दी एस्केप. जो वो बर्चेस की जो ब्रांचेस की मूवमेंट है, अपवर्ड ज़रूर जाएं लेकिन वापस भी आना आपके लिए ज़रूरी है. ठीक है, बेसिक इसके जो थीम्स हैं वो यही हैं, इमेजिनेशन एंड ऑल दैट. ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, ही रिजेक्ट्स द सेल्फ डिल्यूजनल एक्सट्रीम ऑफ इमेजिनेशन, के खुद को बिल्कुल पागलपन की हद तक इमेजिनेशन नहीं होना चाहिए कि अपने आप को भी इंसान धोखा देने लगे. ही रीइंफोर्सेस हिज टाइज टू द अर्थ. ठीक है, ज़मीन से जुड़े रहना उसके लिए ज़रूरी है. ठीक है, और थोड़ी सी रिग्रेट नज़र आती है, पछतावा, दैट ही कैन नो लॉन्गर बी दैट बॉय, ही कैन नो लॉन्गर फील दैट पीस ऑफ माइंड बाय जस्ट स्विंगिंग ऑन द branches of a tree.
तो एक ये चीज़ भी है, वो उसको मिस करता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। रैशनल वर्ल्ड जो है आपका, नॉर्मल वर्ल्ड मैंने जैसे कहा है, उससे एस्केप बताता है ये। कुछ रेपिटेशन है इसमें, लेकिन आप ज़रूर इसको रीड कीजिएगा to understand it in a better way. I want to talk about the themes now. Yeah, themes क्या हैं आपके पास? The conflict between fantasy and reality, जैसे मैं explain कर चुकी, fantasy, imagination, reality जो आपकी real life है, उसके बीच में जो swinging motion है, उसके बारे में वो बात करता है. Power of memory, जाहिर है उसकी memory की power ये, जिससे वो ये imagine कर रहा है कि एक बच्चा जो है, a boy, maybe a boy has been swinging on the branches, जिसकी वजह से ये bent हैं, और वो इतनी ताकतवर उसकी memory है that he can actually see that boy swinging on the branches just like himself, like he used to do in his childhood. जिस टाइम पे इसने ये पोएम लिखी थी, कह सकते हैं कि एट दैट टाइम इंग्लिश सोसाइटी अगर हम देखे जाए, यू नो, अमेरिका तो अब इट हैज़ बिकम अमेरिका पर से, बट एट दैट टाइम बेसिकली वो इंग्लैंड के जो लोग हैं, इंग्लिश पीपल हैं या फ्रेंच हैं, उन्हीं से इनहेबिटेड था, और ज़्यादा इंग्लैंड के लोग थे वहाँ पे। तो उस टाइम पे जो था वो बच्चों की यही एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे हमारे बड़े हमें बताते हैं कि वो बचपन में गाँव में खेलते कूदते थे, बाहर नेचर में निकलते थे, नेचर के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा था। तो उसके टाइम पे भी, या उसकी बचपन के टाइम पे जो थे वो गुड पार्ट टाइम जिसे कह सकते हैं, सॉरी पास्ट टाइम जो था बच्चों का खेलने के लिए, वो ये था कि दरख्तों पे झूले लेना. सो ही इज रिमेम्बरिंग दैट, और इतनी स्ट्रांग उसकी वो मेमोरी है, इज मिसिंग दैट टाइम सो मच दैट ही कैन एक्चुअली सी दैट बॉय, जबकि ऐसा नहीं है. असल में वो ब्रांचेस स्नो की वजह से नीचे हैं. यूथ, लाइक आई सेड दैट ही मिसेस हिज यूथ. ठीक है, वो अपना यंगर सेल्फ इमेजिन कर रहा है, बिकॉज यूथ जो होती है वो नेचर के साथ ज़्यादा जुड़ी हुई होती है, जैसे कि हम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में भी पढ़ते हैं. इट इज़ मोर यू नो रिलेटेड टू नेचर. वो नेचर की जो वाइल्डनेस है वो आपकी यूथ में होती है, इसीलिए यूथ में आपको नेचर अट्रैक्ट भी शायद ज़्यादा करती है. मैन एंड द नेचुरल वर्ल्ड. फिर उसने ये भी थोड़ा सा बर्चेस को उसने ये भी बताया है, कहीं पर वो नेचर को खूबसूरती के तौर पे बयान करता है, पर कहीं पे वो उसकी डेंजरस साइड को भी बयान करता है, कि नेचर जो है वो डिस्ट्रॉय भी कभी कभी करती है. वो एक अच्छे खासे ट्री की ब्रांचेस को नीचे की तरफ तोड़ने की हद तक भी ला सकती है. तो वो चीज़ भी है, आपको एक नज़र आएगा कि मैन का नेचुरल वर्ल्ड के साथ क्या इंटरेक्शन है. जैसे कुछ राइटर्स पहले भी उसके टाइम पे, जो राइटर्स का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी अमेरिकन लिटरेचर में ही आते हैं. इन्होंने नेचर का जो स्केरी पार्ट था उसको थोड़ा सा कम, और उसका खूबसूरत पार्ट जो है, या उसका फिलोसॉफिकल जो साइड है, उसको ज़्यादा बयान किया था. तो इसके में भी हमें नज़र आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की तरह, कीट्स की तरह, हमें कहीं पर उसका वो थोड़ा सा नेचर के ज़रा स्केरी पार्ट भी नज़र आता है. ठीक है, अच्छे पार्ट भी नज़र आते हैं. ठीक है, जैसे वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और कीट्स जो हैं वो अच्छी बात भी करते थे. कॉलरिज बीच में समटाइम्स ही यूज्ड टू treat nature as something that can destroy as well, that can, you know, scare man as well. But Wordsworth and Keith mostly talked about nature in a good way. So his poems are a mixture of what Wordsworth, Coleridge and Keats wrote, and what the poets of his time were writing, जो कि Emerson और आपके पास दूसरे writers हैं. सो ये बर्चेस का है सारा का सारा एनालिसिस. ये डॉक्यूमेंट जो मैंने बनाया है इसको प्लीज़ रीड आउट करें, बट आई एम गोइंग टू से इट अगेन, डू योर ओन रिसर्च एज वेल. खुद अपनी रिसर्च भी करें, फिर मैं इंशाल्लाह ताला, आप लोग पढ़ लें तो मैं इसके हवाले से कुछ असाइनमेंट भी आपको ज़रूर असाइन करूँगी. ठीक है.